नेशनलिज्म इन यूरोप इन हिस्ट्री, ठीक है, फ्रॉम दिस चैप्टर केस स्टडी क्वेश्चन में आकर मे कम, ठीक है। इसमें से आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्लेबिसाइट आपको लर्न करना है, ठीक है। प्लेबिसाइट इज जनरली आस्क्ड, यूटोपियन विजन, यूटोपियन विजन, ठीक है। और यूटोपियन विजन के बाद नेशन स्टेट, नेशन स्टेट, ठीक है। एंड from this chapter you have also to learn, you know, contribution of Napoleon for France, for Europe, ठीक है। contribution of Napoleon, contribution of Napoleon, ठीक, for European countries, this is very important, for European countries, ठीक, right. And you know, collective belongingness, ठीक है, collective belongingness, collective belongingness, ठीक है, developed, ठीक है, in Europe or in France, ठीक है। how this thing developed, ठीक है, how it developed, right, what was that collective belongingness, understood। फिर उसके बाद सिविल कोड 1804, ठीक, 1804, जिसमें नेपोलियन का सारा मेजर्स है, ठीक है। नेपोलियन हैज टेकन ऑल मेजर्स, क्लियर। एंड अलॉन्ग विद दिस you have to study some more thing, that is making of Germany and Italy, ठीक है, making of, और यूनिफिकेशन भी कहते हैं, मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, ठीक है। ये दो चीजों पे क्वेश्चन पुटअप होता है, अंडरस्टूड। एंड अलॉन्ग विद दिस you have to visualize, ठीक है, you have to visualize the nation, ठीक, नेशन को विजुलाइज करने के लिए फिर उसके बाद जो है इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, इन बाल्कन स्टेट, ठीक, बाल्कन स्टेट, अंडरस्टैंड, दैट लेड to फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अंडरस्टूड। तो इतनी सारी चीजें आपको इस चैप्टर में यू हैव टू कीप इन माइंड। फर्स्टली द टर्म प्लेबिसाइट, ठीक है, इट वाज इन एंशिएंट टाइम, ड्यूरिंग एंशिएंट डिजाइन इन यूरोपियन कंट्रीज, प्लेबिसाइट्स, ठीक है, दे वर कल्टिवेटेड व्हेन द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म was rising in Europe. Plebiscite means direct vote, okay, to accept or reject a proposal, ठीक है। Plebiscite is a direct vote to accept or reject a proposal, ठीक है। It was, you can say cultivated in France, ठीक है, in many other German states, in Italy, clear, where people were fed up with monarchy rule. That's why for taking decision people had to use plebiscite, understood। उसके बाद आपका आता है यूटोपियन विजन, ठीक है, a particular European society which has ideal, ठीक है, opinions which is not possible in reality, that is utopian vision, understood। a condition of state, ठीक है, an ideal condition of rule, ठीक है, which is not possible in reality, that is your utopian vision, समझ गए। नेशन स्टेट, ठीक है, मीन्स a state developed by citizens by constitutional democracy, understand, and state that emerged after
डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, एंड विद कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इट बिकम्स नेशन स्टेट. Nation means the citizen of a particular geographical land. Understand? That becomes a nation, not that part of the land. If peoples they are supporter of monarchy rule, then it is not a nation state. ठीक है? It is monarchical state. It is imperial state. Understand? But when there is constitutional democracy, the spirit will. ठीक है? And it is the rule, people rules on themselves. Clear? Then it becomes a nation state. Understood? फिर उसके बाद आपका आता है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नेपोलियन फॉर यूरोपियन कंट्रीज. ठीक है, नेपोलियन ही हैड टेकन मेजर्स इन फ्रांस व्हेन ही केम इन थ्रोन. ठीक है, जब वो थ्रोन पे आया, व्हेन ही फाउंड दैट इन नेपोलियन मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, ठीक है, हिज रेन ऑफ टेरर वाज एट एक्सट्रीम स्टेट. क्लियर? And finally when he was guillotinized, directory rule came in France and all directors they were failed. At that time Napoleon Bonaparte he got an opportunity, ठीक है, and he took power, ठीक है, on France, and finally he became a ruler. Understand? And he declared himself as the ruler of France and he told that you can cultivate constitutional monarchy, constitutional democracy can be cultivated, ठीक है, but final decision is mine. Understand? Here this man Napoleon Bonaparte, what he had done, he took many measures. ठीक है, फर्स्टली उसने जितने भी 29 करेंसीज थी उसको उसने 2 करेंसी में कन्वर्ट कर दिया. सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ करेंसी की थी यूरोपियन कंट्रीज में. ठीक है, दे हैड टू गो थ्रू वेरियस करेंसीज. जितने भी ट्रेडर्स थे उनको जो है हर स्टेट में जाने पे उनको करेंसी चेंज करनी पड़ती थी. ठीक है, ऐसे 32 करेंसीज थी टोटल. अंडरस्टैंड? तो ट्रेडर्स के लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी कैलकुलेशन में. अंडरस्टैंड? देयर वाज लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन कैलकुलेशन ऑफ करेंसीज. दैट्स व्हाई नेपोलियन बोनापार्ट इन यूरोप ही ऑर्डर्ड टू यूज ओनली 2 करेंसीज. तो उसके टेरर से सारी करेंसीज बंद हो गई, केवल 2 करेंसीज चलने लगी. ठीक है, अब ट्रेडर्स को इजी हो गया कैलकुलेशन करने में, isn't it? Otherwise they had to do hard calculation. And revenue, sometimes they had to pay higher revenue, sometimes less revenue. For example, मान लीजिए कि एक पार्टिकुलर स्टेट है पोलैंड. ठीक है, पोलैंड में वहाँ की करेंसी जो है, मान लीजिए वहाँ डॉलर है थोड़ी देर के लिए. ठीक है, वहीं पे इटली है, ठीक, उसकी करेंसी मान लेते हैं, कोई भी करेंसी मान लेते हैं यूरो थोड़ी देर के लिए. ठीक है, तो इनको जो है डॉलर से यूरो में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, और इनको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो इससे क्या होता था, फिर उसके बाद वहीं पे कोई दूसरा स्टेट है, मान लो फ्रांस है. ठीक है, वहाँ उनकी करेंसी है फ्रैंक. अब जो है डॉलर को यूरो, यूरो को फ्रैंक, ऐसे 10 में यही सब कन्वर्ट कर दे रहा हूँ. ठीक है, पता लगा कि यहाँ पे $1 जो है आपका जो है 10 यूरो के बराबर है, और यहाँ पे 1 फ्रैंक जो है ये पता लगा 5 यूरो के बराबर है. ठीक है, दोनों का अलग अलग करेंसी है. तो इस वजह से क्या हुआ, इससे इनको इससे बिजनेस करने में आसान है, इससे घाटा है. isn't it? So these were the challenges that was ended by Napoleon Bonaparte. तो उसने क्या किया, he maintained new measures of weights, ठीक है, and length. मतलब उसने मेजरमेंट्स करने के जो उसने वो थे कॉन्सेप्ट ही हैड चेंज्ड. ठीक है, सेकेंडली ही रिपेयर्ड रोड्स. ठीक है, ही रिपेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर्स. अंडरस्टैंड? ही ऑल्सो स्टार्टेड मीन्स सबसे पहले तो उसने क्या किया, ही एबॉलिश फ्यूडलिज्म. उसने फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया. पहले वहाँ पे फ्यूडल सिस्टम था. ठीक है, ये भी उसका एक कॉन्ट्रीब्यूशन है. राइट. थर्ड थिंग, नेपोलियन ऑल्सो एबॉलिश्ड, यू कैन से, हाँ, एक तो फ्यूडल सिस्टम उसने एबॉलिश किया, दूसरा प्रिविलेज बाय बर्थ, जो प्रिविलेज बाय बर्थ मिलता था लोगों को, वो भी नेपोलियन ने खत्म कर दिया. क्लियर? सो इन दिस मैनर ही कॉन्ट्रीब्यूटेड सो मेनी थिंग फॉर यूरोपियन कंट्रीज. समझ में आ गया सबको? ठीक है.
फिर इसके बाद आता है सिविल कोड 1804 मीन्स ऑल मेजर्स टेकन बाय नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, उसने करेंसी को उसने सही किया, वेट्स एंड मेजर्स को उसने सही किया। ठीक है, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर सही बनवाए, उसने फ्यूडलिज्म को एबॉलिश किया। ठीक है, और इस तरीके से उसने जो है पूरे यूरोप में कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी स्टार्ट कर दी। अंडरस्टैंड? लेकिन उसके अंदर उसने सबसे गलत काम क्या किया? वाई ही बिकेम डिफेम्ड? बिकॉज ही स्टार्टेड फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, जबरदस्ती रिक्रूटमेंट करने लगा था। ठीक है, जो नहीं चाहता था उसको भी रिक्रूट करते थे आर्मी के लिए। अंडरस्टैंड? इससे पब्लिक क्या हो गई थी? दे वर टेरराइज्ड एंड दे वांटेड टू रिमूव दिस मैन। ठीक है, यही बाद में इसका रिजल्ट हुआ। एंड फाइनली इन द बैटल ऑफ कौन सा बैटल था? 1815 में। ठीक है, तो बैटल ऑफ वाटरलू था वो। ठीक है, यूरोप में, उसमें जो है डिफीट हो गया था। इसके कौन कौन इसके अगेंस्ट में थे? यूएसए, रसिया एंड ब्रिटेन। ठीक है, इन तीनों ने इसको मतलब जो है सराउंड करके इसको डिफीट कर दिया। ठीक है, और बाद में आपका क्या आया? कौन सी ट्रीटी आई? वियना। ठीक है, ट्रीटी और वियना कांग्रेस इसी पे स्टैब्लिश हुआ। ठीक है, वियना कांग्रेस 1815। ठीक है, वियना कांग्रेस। ठीक है, इसका मेन एम क्या था? टू अनडू, ठीक है, एवरीथिंग ऑल चेंजेस दैट वाज मेड बाय नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने जो भी चेंजेस किए थे उसको ख़त्म करना। ठीक है, दिस वाज वियना कांग्रेस मेन ऑब्जेक्टिव। समझ आ गया? और बाद में क्या हुआ? इन्होंने जितने भी नेपोलियन के डिफीट होने के बाद जितने भी स्टेट्स थे देवर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग यूरोपियन कंट्रीज। जहाँ जहाँ से उसने जीता था उसको वापस कर दिया गया। क्लियर? ये सारे उसके मतलब जो थे क्या है, वियना कांग्रेस में ये सब डिसीजंस हुए थे। इस पर भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग पढ़ लेंगे। राइट, फिर उसके बाद इसमें एक आता है कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस डेवलप्ड इन फ्रांस। फ्रांस में कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस कैसे डेवलप हुआ? ठीक है, तो फ्रांस में क्या था? द आइडिया ऑफ ली सिटोयन। ठीक है, ली सिटोयन एंड ला पैट्री। ठीक है, मीन्स ली सिटोयन मीन्स यू आर सिटीजन ऑफ। ठीक है, सिटीजन ऑफ। ठीक, और ला पैट्री क्या होता है? फादरलैंड। दिस इज आवर फादरलैंड। ठीक है, ये दो आइडियाज काफी स्ट्रॉन्गर होने लगे फ्रांस में। ठीक है, पीपल वर टोल्ड दैट यू आर द सिटीजन ऑफ फ्रांस। ठीक है, एंड यू आर लिविंग हियर फॉर मेनी ईयर्स। अंडरस्टैंड? एंड इट इज योर फादरलैंड। ठीक है, ये आपकी जन्मभूमि है, मदरलैंड, फादरलैंड। ठीक है, एक तो ये स्ट्रॉन्गर होने लगा। दूसरी चीज क्या हुई? मार्टिर्स वर कॉमेमोरेटेड। जितने भी शहीद थे, ठीक है, मार्टिर्स दे वर कॉमेमोरेटेड। ठीक है, उनको श्रद्धांजलि दिया जाने लगा, इवेंट्स कराए जाने लगे। जितने भी शहीद थे उनको जो है क्या कहते हैं, लोग एकदम गेदर होकर के इन अ क्राउड दे हैड टू रिस्पेक्ट देम, दे हैड टू गार्लैंड देम। ठीक है, मीन्स मार्टिर्स वर कॉमेमोरेटेड। क्लियर? न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड। नए नए नेशनल क्या कहते हैं, नेशनल सॉन्ग्स कंपोज हुए। ठीक है, पोएट्स बहुत सारे आपके सामने आए। मार्सलीज जो कि फ्रांस का क्या है, नेशनल एंथम है, मार्सलीज। इट वाज कंपोज्ड एंड पीपल हैड डेवलप्ड पैट्रियोटिक फीलिंग। ठीक है, एंड यूनिटी वाज डेवलप्ड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। क्लियर? अब ट्राई कलर फॉर फ्रांस वाज चूजन। अंडरस्टैंड? फ्रांस हैड चूजन अ ट्राई कलर। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट्स है, इसी को आपको डेवलप करना है। 120 वर्ड्स है, इसी को हेडिंग बना लेनी है जो मैंने बताया। राइट, इसको आप लोग पढ़ लेंगे, सब लिखाया हुआ नोट्स में सब लिखे हो आप लोग। ठीक है, उसको स्टडी करना है। फिर इसके बाद मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली है कि नहीं? जर्मनी और इटली कैसे बना? ठीक है, तो आपको पता है जर्मन स्टेट, ये पॉलिटिकल एसोसिएशन केम इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। जर्मनी का यूनिफिकेशन, ठीक है, फॉर जर्मनी। ठीक है, इसकी मेकिंग के लिए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था वहाँ पे जर्मनी में।
ठीक, यहीं भी आइडिया डेवलप हुआ कि हमें इसको क्या करना है, यूनिफिकेशन करना है। ठीक है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था जर्मनी का पार्लियामेंट, ठीक है, और अ कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मन नेशनल असेंबली थी और वहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने ड्राफ्ट किया। ठीक है, दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन इन जर्मनी, ठीक है, एट फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ठीक है, और इसमें एक सबसे बड़ी चीज ये थी, इन 1848 जर्मन स्टेट्स एंड प्रसिया बिगैन टू ऑर्गेनाइज। जर्मनी 18 स्टेट्स में डिवाइड था, ठीक है, तो सारे जर्मन स्टेट्स और प्रसिया ये लोग मिलकर के ऑर्गेनाइज होने लगे, उनके अंदर एक यूनिटी की फीलिंग डेवलप होने लगी, अंडरस्टैंड। और इसके साथ साथ दे टुक इट वाज टू प्लेस एज अ डेनिश वार, ठीक है, ऑस्ट्रो प्रसियन वार वहाँ पे हुआ और एक फ्रैंको प्रसियन वार, ठीक है, ऑस्ट्रिया और प्रसिया की लड़ाई हुई और फिर फ्रैंको प्रसियन वार, ठीक है, प्रसिया और फ्रांस की लड़ाई हुई, अंडरस्टैंड। इस तरीके से प्रसिया वाज विनर, ठीक है, प्रसिया बिकेम विक्टोरियस, क्लियर, एंड फाइनली व्हाट हैपेंड, द सुपरमेसी वाज एस्टैब्लिश्ड ऑफ प्रसिया, प्रसिया ने अपनी सुपरमेसी एस्टैब्लिश कर दी एंड कैसर विलियम फर्स्ट ही बिकेम एम्परर ऑफ जर्मनी, ठीक है। इन दिस वे विद द एफर्ट ऑफ प्रसिया, ठीक है, जर्मनी वाज एसोसिएटेड, जर्मनी वाज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, इट वाज यूनिफाइड, अंडरस्टैंड, मतलब बाय फोर्स इट वाज यूनिफाइड, ठीक है। अब इसी तरह इटली की बात आती है, इटली में हैब्सबर्ग एम्पायर था, ठीक है, इटली भी कई स्टेट्स में डिवाइडेड था, वहाँ पे हैब्सबर्ग एम्पायर था, ठीक है, और ये जो हैब्सबर्ग एम्पायर है यहाँ पे सार्डिनिया पिडमंट वाज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली हाउस, ठीक है, और इसके यूनिफिकेशन में 3 लोग थे, गुसिप मज़नी, ठीक है, गैरीबाल्डी और इसके साथ कौन था, काबूल, ठीक है, गैरीबाल्डी, काबूल और गुसिप मज़नी, इन तीनों लोगों ने मिल करके प्रसिया को फोर्ज कर, मतलब जो है क्या कहते हैं, इटली को फोर्ज कर दिया, ठोक पीट करके यूनाइटेड कर दिया, मीन्स लड़ाई करके, वार डिक्लेयर करके, ठीक है, जितने भी नेशन स्टेट्स थे उनके जितने भी लोकल रूलर्स थे उनके ऊपर इन्होंने अटैक कर दिया, ठीक है, एंड फाइनली दे डिफीटेड ऑल लोकल रूलर्स एंड दे फोर्स्ड इटली इनटू अ यूनिफाइड, ठीक है। जैसे होता है ना, बहुत सारे मेटालिक पीसेज हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, हथौड़े से मार मार करके सबको एक में फोर्ज कर देते हैं, है कि नहीं, पहले अलग अलग उसको पीट पीट करके फोर्ज कर दिए, वैसे इटली का यूनिफिकेशन हुआ, ठीक है। डी कैबूर ही वाज चीफ मिनिस्टर, ठीक है, वो जो था इटली का चीफ मिनिस्टर था, और इसमें जो है क्या कहते हैं, जो इसका जो किंग थे, ठीक है, वहाँ के जो क्या कहते हैं हैब्सबर्ग एम्पायर के जो किंग थे, ठीक है, सार्डिनिया पिडमंट के, उनके साथ मिल करके इन्होंने क्या किया कि जो है सारे जितने भी स्टेट्स थे उस पर अटैक करके दे यूनिफाइड इटली, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है गैरीबाल्डी, इसके पास 2 वो थे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यंग क्या क्या था, यंग इटली और एक यंग इटली था, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था उसका, ठीक है, और इसके थ्रू उसने क्या किया, इधर गैरीबाल्डी ही वाज सपोर्टर ऑफ गुसिप मज़नी, ठीक है, गैरीबाल्डी ने बहुत सारे वॉलंटियर्स रिक्रूट किए थे, ठीक है, बाद में इन्होंने जब स्पेन पे अटैक किया तो गैरीबाल्डी विद हिज ऑल वॉलंटियर्स ही सराउंडेड स्पेन एंड फाइनली द रूलर ऑफ स्पेन वाज सरेंडर्ड, ठीक है, उसने देखा कि अब हम नहीं जीत पाएंगे, उसने सरेंडर कर दिया, एंड सार्डिनिया मीन्स दैट यू नो स्पेन वाज आल्सो केम इन इटली, ठीक है। सो इन दिस मैनर योर इटली वाज यूनिफाइड, अंडरस्टैंड। वहीं पे ब्रिटेन में था एक्ट ऑफ यूनियन 1707, ठीक है, इस एक्ट ऑफ यूनियन को ब्रिटिश मोनार्ची ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया पूरी कंट्री में, और जो ब्रिटेन की मोनार्ची रूलर, ठीक है, दे लेड एन आर्मी, स्ट्रॉन्ग आर्मी, एंड दे अटैक्ड ऑन स्कॉटलैंड, ठीक है, एंड फाइनली दे फोर्स्ड इट, मीन्स दे डिफीटेड इट, एंड यू नो यूनाइटेड किंगडम with 4 states it became UK, that is United Kingdom. Earlier Britain was divided into 4 states,
ठीक है, 4 आइलैंड पे डिवाइडेड था। बाद में क्या हुआ, एक्ट ऑफ यूनियन लागू हुआ, ठीक है, एंड बाय फोर्स ब्रिटिश मोनार्ची अटैक्ड ऑन दीज 4 आइलैंड्स एंड फाइनली डिफीटेड द लोकल रूलर्स एंड इट बिकेम यूनाइटेड किंगडम। वेरी सिंपल। फिर इसके बाद आपका है यूरोप में बहुत सारे बाल्कन स्टेट्स थे, ठीक है। बाल्कन स्टेट्स दे वर रूलर मीन्स लोकल रूलर्स एंड दे हैड एथनिक डाइवर्सिटी। some were French speaking, some were Latin speaking, some were Dutch speaking people, some had their local languages and they had different cultures, ठीक है। they never compromised with each other, they had their own territory, ठीक है, and their own territory was defined, clear। in this way all these people they had, you can say, ये आपका जो है क्या कहते हैं, बाल्कन स्टेट्स दे हैव डेवलप्ड इंटेंस रिलेशनशिप, देयर रिलेशनशिप वर अंडर टेंशन, एवरी लोकल रूलर्स दे वांटेड टू एक्सपैंड देयर टेरिटरी आइदर बाय अटैकिंग ऑन अनदर कंट्री और बाय एनी अदर डिप्लोमेटिक रूल्स, ठीक है। फाइनली व्हाट हैपेंड, देयर वर फ्रीक्वेंट वार्स, ठीक है, इसी में फ्रीक्वेंट वार्स होते रहे और बाद में जो है वो क्या कहते हैं, वहाँ पे पिगमेंट का जो रूलर था, ठीक है, द प्रिंस ही वाज इनवाइटेड इन अनदर कंट्री एंड ही वाज असैसिनेटेड देयर, वहाँ उसका असैसिनेशन हो जाता है, ठीक है। एंड फाइनली क्या होता है कि बोथ कंट्रीज दे हैड डिफरेंट ब्लॉक्स, पूरा वर्ल्ड जो है 2 ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया, एक उनकी उसका सपोर्टर और एक उसका सपोर्टर, ठीक है। एंड द वॉर वाज स्टार्टेड इन 1814, दैट वाज नोन एज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। आर्च ड्यूक फर्डिनेंड उसका नाम था, ठीक है, जो प्रिंस था वहाँ का, क्लियर। उसका जो है क्या कहते हैं, उसकी वजह से क्या हुआ, जब उसका असैसिनेशन हो गया तो लोगों में और इंटेंस जो है रिलेशनशिप डेवलप हो गया और टेंशन बढ़ गया, उन्होंने अपने सपोर्टर्स को जो है अपने साथ कर लिया, उन्होंने अपने सपोर्टर्स को अपने साथ कर लिया एंड वार वाज स्टार्टेड, दिस वाज नोन एज फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स, तो इस तरीके से आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, नेशनलिज्म इन ब्रिटेन, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, फिर जो है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, फ्रांस और बाल्कन स्टेट, यही 4 पॉइंट है इस चैप्टर में, ठीक है। और इसमें आपको बता दें कि दी वार ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन ये 40 और 48 के बीच में, 1740 और 1748 के बीच में हुआ, ठीक है। और इसमें एब्सोल्यूटिस्ट एक टर्म है इस चैप्टर में, एब्सोल्यूटिस्ट, ठीक है। व्हाट इज एब्सोल्यूटिस्ट, एब्सोल्यूटिस्ट, ठीक है, ये भी एक वर्ड इस चैप्टर में आया हुआ है, राइट। तो एब्सोल्यूटिस्ट मीन्स अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल that has restraint, ठीक है, it has a restraint on power exercised, means they had developed monopoly, ठीक है, एक ऐसा गवर्नमेंट रूल, ठीक है, और रूल which have developed monopoly, ठीक है, और you can say dictatorship, such type of imperial states were known as absolutist, understand, मतलब जो अपने आप को everything समझते थे। Absolutist means who accept themselves that they have absolute power and others are helpless people, उसको हम absolutist कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यूटोपियन मैंने अभी बताया कि a vision of society that is so ideal which could not be possible in real life, ऐसा विजन हमारी सोसाइटी का जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है, विजन तो हमारा एकदम आइडियल है, ठीक है, वो रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, ठीक है, उसमें हम लोग मॉलिक्यूल्स को एकदम स्फेरिकल मानते हैं, है कि नहीं, जबकि एक्चुअल में नहीं है, लेकिन हमने उसकी आइडियल कंडीशन सपोज की है, क्लियर। तो इसी तरीके से यूटोपियन विजन भी है, राइट, मीन्स हमारा मतलब हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि हमारी सोसाइटी ऐसी हो, लेकिन रियल लाइफ में हो ही नहीं पाती ऐसी, दैट इज कॉल्ड यूटोपियन विजन, ओके। इसी तरीके से एक टर्म है डास वोल्क, ठीक है, डास वोल्क एक वर्ड आया इस चैप्टर में, डास वोल्क,
ठीक है। डास वोल्क मीन्स कॉमन पीपल ऑफ जर्मनी। जर्मनी के जो कॉमन पीपल्स थे उनको हम डास वोल्क कहते हैं। कॉमन पीपल ऑफ जर्मनी दे वर नोन एज डास वोल्क, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही और भी बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। एलेगरी, ठीक है, सिंबल रिप्रेजेंटिंग एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, इसको एलेगरी कहते हैं। सिंबल रिप्रेजेंटिंग एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, जैसे हम लोग मदरलैंड को फीमेल फिगर से डिनोट करते हैं, ठीक है। जर्मनी की मदरलैंड को जर्मेनिया है कि नहीं, ऐसे ऐसे करके हमने बहुत सारे जो है इंडिया की मदरलैंड को भारत माता, ठीक है। ऐसे ही हर कंट्री की जो है मदरलैंड को हमने किसी न किसी नेम से डिनोट किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एलेगरी, अंडरस्टैंड। सिमिलरली यू हैव गॉट एक टर्म आया रोमांटिसिज्म, ठीक है। आपकी बुक में इस चैप्टर में एक टर्म है रोमांटिसिज्म, राइट। सो रोमांटिसिज्म क्या होता है? कल्चरल मूवमेंट है, ठीक है। ये कल्चरल मूवमेंट है, इसका मेन एम क्या है? एम्ड एट डेवलपिंग पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटीमेंट, लोगों के अंदर एक नेशनल सेंटीमेंट जो है फिल करना, ठीक है। एक ऐसा मूवमेंट चलाया गया रोमांटिसिज्म, ठीक है, whose मेन एम वाज टू फिल पीपल विद नेशनल सेंटीमेंट, उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना भरना, ठीक है। रोमांटिसिज्म से जो है नेशनलिस्टिक फीलिंग डेवलप हुई लोगों के अंदर, ठीक है। दैट वाज नेशनल सेंटीमेंट्स, राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाना, राष्ट्र के प्रति इसकी भावना को स्ट्रॉन्गर करना, ठीक है। दैट इज कॉल्ड नेशनल सेंटीमेंट्स, राइट। और इसके साथ साथ ऐसे ही एक फेमिनिस्ट टर्म है, ठीक है, अवेयरनेस ऑफ वुमेन्स राइट्स एंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन बिलीफ ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल इशू, ठीक है। फेमिनिस्ट वाज अ मूवमेंट, ठीक है, in which women's they were they had struggled for their rights, ठीक है। they wanted that why women are discriminated, ठीक है। इसके लिए फेमिनिस्ट मूवमेंट चला। they also asked for right to vote, क्योंकि फ्रांस में किसी वुमेन को राइट टू वोट नहीं मिला था, ठीक है। so to for such movement they had started a feminist movement, क्लियर। और इस तरीके से एक था जंकर्स। जंकर्स वर लार्ज लैंड ओनर्स, ठीक है। ये लोग क्या थे? दे वर लार्ज लैंड ओनर्स, ठीक है, प्रसिया में थे ये सब। जंकर्स वर लार्ज लैंड ओनर्स इन प्रसिया। ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स हैं दैट यू हैव टू गो थ्रू दिस बुक, ओके। सो आई थिंक दिस चैप्टर इज ऑलमोस्ट क्लियर, ठीक है। सफरेज का मतलब क्या होता है? राइट टू वोट, वेरी गुड, ठीक है, राइट। इसके बाद आपका एक और चैप्टर आता है नेशनलिज्म इन इंडिया, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ब्रीफली, राइट। हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार, है ना। हिस्ट्री आपका डिस्कसन कंप्लीट हो जाए, बाकी तो आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो, है कि नहीं। बाकी तो छोटे छोटे हैं, ये दोनों लंबे हैं। हिस्ट्री में आपको बता दें कि हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है इट वाज स्टार्टेड इन 1814, ठीक है, अंडरस्टैंड। 1814 में फर्स्ट वर्ल्ड वार इट वाज स्टार्टेड, ठीक है। और उससे पहले हमारी कंट्री में जो ये डिस्कशन है, दिस डिस्कशन ऑफ दिस चैप्टर इज आफ्टर 1915। 1915 के बाद इंडिया में कौन कौन से इवेंट्स हुए, दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर, ठीक है। 1915 से पहले की इवेंट्स की बात नहीं हो रही, ठीक है। सारी चीजें मैन महात्मा गांधी केम टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ठीक है। ही मेड अ टूर ऑफ ऑल इंडिया, ठीक है। ही यूज्ड इंडियन लोकोमोटिव्स, ठीक है, बाय इंडियन ट्रेन। ही हैड ट्रैवल्ड मेनी एरिया, ठीक है। Finally, he found lot of discrimination. He observed many types of social issue. ठीक है? He observed many types of disparity created by colonial government. ठीक है? When he reached Bihar, Champaran, ठीक है? What he found there? He found the problem of cotton mill workers. ठीक है?
और इसके साथ साथ जो है सूरत में भी यही प्रॉब्लम, ठीक है। और फिर जो इंडिगो ग्रो करते थे बिहार के लोग, ठीक है, दे वर नॉट पेड प्रॉपरली, दे वर पुअरली पेड, ठीक है। एंड मोस्ट देयर बैलेंस मीन्स देयर पेमेंट्स, they were still waiting for payments. They were always giving raw materials, they were gave raw materials but they could not get return, isn't it? So they were suffering from economic crisis, isn't it? So Mahatma Gandhi supported them, ठीक है। तो इसी को हमने कहा चंपारण मूवमेंट, ठीक है। फिर इसके बाद खेदा मूवमेंट अभी आएगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं महात्मा गांधी अज्यूम्ड लीडरशिप ऑफ द ऑप्रेस्ड क्लास। जितने भी हमारे दलित लोग थे उनकी लीडरशिप को महात्मा गांधी ने एक्सेप्ट किया, ठीक है। उन्होंने देखा कि जो हायर क्लास के लोग हैं दे आर ऑलरेडी रिच, दे नीड नॉट एनी टाइप ऑफ रिफॉर्म और एनी चेंजेस, बट कॉमन पीपल, डिप्रेस्ड क्लास पीपल, दे नीड सपोर्ट, है कि नहीं, अदरवाइज दे कुड नॉट डेवलप एट ऑल, isn't it? So this sentiment of Mahatma Gandhi, it made him a great person. That's why he became Mahatma. Why he is called Mahatma? Because he supported depressed class people, ठीक है। and he started eradicating Indian social evils, ठीक है, and the discrimination created by colonial government, understand? This thing Mahatma Gandhi did and finally he became a great person, ठीक है। महात्मा गांधी he started peasant movement, ठीक है। इन्होंने एक पीजेंट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम जो था 1917 में बिहार में चंपारण में, जिसकी बात मैंने कही, उसके लिए उन्होंने एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। और उसके बाद जो है खेदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, ठीक है, अहमदाबाद जाकर के उन्होंने एक सत्याग्रह मूवमेंट चालू किया, खेदा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सारी चीज़ें बुक में दी हुई हैं, यू हैव टू स्टडी दैम, आपको लोकेट करने के लिए भी आ सकता है। खेदा वर्ड आते ही तुरंत गुजरात पहुंचना है, ठीक है। चंपारण आते ही तुरंत बिहार में जाना है, अंडरस्टैंड। ये 2-3 नेम है, सूरत नाम आते ही गुजरात, ठीक है, अहमदाबाद नाम आते ही गुजरात पहुंचना है, नागपुर नाम आते ही महाराष्ट्र में घुस जाना है, ठीक है, नागपुर, राइट। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड। और बहुत सारे कांग्रेस सेशन हुए, ठीक है। यू हैव टू लोकेट ऑन मैप ऑफ इंडिया, यू आर ऑलरेडी हैविंग मैप वर्क फ्रॉम नेट है कि नहीं, नेट से आपने बहुत सारा मैटर खोजा होगा, है ना, बोर्ड के जो भी हैं, है ना। आई हैव ऑलरेडी सेंड सिलेबस ऑल्सो, उसमें आप देख लीजिए जितना सिलेबस में उसी की प्रैक्टिस करनी है, नॉट एल्स अदर, ठीक है। तो इसमें है 1919 ब्रिटिश पास द रॉलेट एक्ट, ठीक है। जब महात्मा गांधी का सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट हो गया, देन व्हाट हैपेंड, द मास मूवमेंट, इट शेक्ड ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गई इसके सामने, ठीक है। तब वहाँ से क्या कहते हैं, ब्रिटिश अथॉरिटी ने तुरंत, टॉरी गवर्नमेंट थी उस समय, उसने तुरंत रॉलेट एक्ट पास किया, ठीक है। They made a Rowlatt Act in British Parliament and it was implemented in India. What was Rowlatt Act? It was also known as Black Rule, है कि नहीं। Rowlatt Act को Black Rule कहा गया, ठीक है। और इस Rowlatt Act में क्या हुआ, it gave them enormous powers, ठीक है। Rowlatt Act gave British government enormous power to arrest anyone on suspicion, ठीक है, एंड दे कुड इम्प्रिजन देम, ठीक है, फॉर 2 years विदाउट ट्रायल, ठीक है। 2 साल के लिए बिना मुकदमा चलाए जेल में डाला जा सकता था किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को या सस्पिशन पे किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स को, वेदर दे आर लोकल लीडर्स और नेशनल लेवल लीडर्स, ठीक है। तो ये पूरा इनॉर्मस पावर मिल गया था रॉलेट एक्ट की वजह से, एक ज़्यादा पावर मिल गई थी लोगों को, ठीक है। एंड फाइनली दे हैड they used this power and they started arresting one by one, ठीक है। in Punjab, अमृतसर many local leaders were arrested, ठीक है। फिर क्या हुआ पंजाब में, 1935 की बात है, ठीक है। पंजाब में क्या हुआ कि वहाँ पे जलियांवाला बाग मैसेकर took place because people on the day of Baisakhi they made a procession, they were collected, but before that General Dyer
ठीक है, ही हैड लॉन्च्ड मार्शल लॉ, उसने पूरे अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया था। बट दीज पीपल हु वर डेमोन्स्ट्रेटर्स दे वर नॉट अवेयर ऑफ दिस लॉ, ठीक है, कि यहाँ मार्शल लॉ लगा है, उन्हें नहीं पता था। दे थॉट दैट दिस इज बैसाखी फेस्टिवल, दे केम इन दैट बाग, जलियांवाला बाग, they wanted to celebrate and discuss the issue why local leaders are being arrested. Understand? Finally what happened? General Dyer became furious that why these Indians they disobeyed his order because he had adopted martial law, है कि नहीं? तो he came with the troop, ठीक है, and entered from one of the gate. He closed the entrance gate of another portion, ठीक है. Finally he ordered his troops to open fire on innocent Indian citizens and they were killed. Many peoples were killed. Many innocent children, women, ठीक है, old people, young peoples, working peoples, they were killed one by one and most of them they were in panic, ठीक है, वो एकदम बेचारे डर गए, पैनिक में आ गए and they wanted to cross the boundary wall but still they received bullet shots, ठीक है. And most of the people there was a well, ठीक है, this well it was totally filled with the people's dead bodies, people, ठीक है, dead body से भर गया पूरा. And this was inhuman activity and it was criticized all over world, पूरी दुनिया में इसका क्रिटिसिज्म हुआ कि इस तरह का जो है क्या कहते हैं एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए. दिस टाइप ऑफ मसैकर इज टोटली इलीगल एंड जनरल डायर वाज punished for that, है कि नहीं. इंडिया से ही 2 रेवोल्यूशनरीज दे वेंट एंड दे थ्रू अ बॉम्ब इन इंग्लैंड, ठीक है. तो इन दिस वे महात्मा गांधी ही बिकेम मोर डोमिनेंट डे बाय डे, ठीक है. ही स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ही फाउंड नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, ठीक है. ये आपके कहाँ से अब आ गए, मोहम्मद अली एंड शौकत अली की बात कर लेते हैं, ठीक है. टॉरी गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश मतलब जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज एंडेड, ठीक है, इन विच अलाइड पावर्स वर विनर, ठीक है, एंड ब्रिटिशर्स वर आल्सो विनर. ऑटोमन टर्की वाज डिफीटेड एंड द स्पिरिचुअल हेड्स ऑफ टर्की दैट इज खलीफा दे हैड लॉस्ट देयर टेम्पोरल पावर, ठीक है, एंड दे वर इंसल्टेड बाय ब्रिटिश अथॉरिटी. सो ऑल इस्लामिक पीपल they were totally, you can say, under pressure. They thought that our religion is in danger, है कि नहीं. उनको लगा कि हमारे धर्म को खतरा है because Khalifas they are insulted, they were spiritual heads, that's why they had appealed various Islamic countries, and in India Mahatma Gandhi supported these two brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali, and he found that this is a good opportunity that we can unite Hindu and Muslim, ठीक है, and we can bring these two communities under one umbrella, है कि नहीं. And finally Mahatma Gandhi's Khilafat movement became successful and he became a national hero, and this movement was supported by all Islamic peoples, ठीक है. But after that Mahatma Gandhi also started non-cooperation movement in further, लेकिन महात्मा गांधी का मेन एम क्या था, नॉन वायलेंस. बट दिस नॉन कोऑपरेशन बिकेम वायलेंट डे बाई डे. वहीं गोरखपुर में चौरी चौरा इंसिडेंस हो गया जिसमें एक पुलिस स्टेशन पर दे हैड बॉम्ब, दे मेड एक्सप्लोजन, मेनी इनोसेंट पुलिसमैन वर किल्ड. सो महात्मा गांधी बिकेम वेरी अनहैप्पी, है कि नहीं. दैट्स व्हाई ही कॉल्ड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है. तो इस तरीके से आप पूरा स्टडी कर लीजिए चैप्टर्स, ठीक है. इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आप अपने आइडियाज़ देख सकते हो, ठीक है. पॉइंट वाइज क्वेश्चन आंसर मैंने दिया है, PDF मैंने उसका भी भेज दिया है ना. लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी का भी, उसको भी आप लोग लिख करके क्लियर कॉपी में राइट कराइए, ठीक है. चेक भी कराना सबको, ठीक है. और मंडे को हम कॉपी चेकिंग रिकॉर्ड भी बनाएंगे, सब लोग कॉपी लेकर आएंगे मंडे को चारों, क्योंकि SST का कब है, जो भी है उसको ला करके चेक करा लेंगे. कल संडे का टाइम है, यू कम विद